أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا یہ فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ فخر اور اشک میاں نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ ہم جو ہے بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے آج انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الشعراء میں آیت نمبر 23 کے درمیانی حصہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میں اس کام کا صلہ تم سے نہیں مانگتا بجز رشتہ داری کی محبت کی۔ یعنی کہ یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو فرما رہا ہے، یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اہل بیت سے محبت کرنا بتا رہا ہے، کیونکہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا واجب ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے، قرآن مجید میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرو، اور اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہیں مانگ رہا ہے، جو مانگ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ نہیں مانگ رہا ہے، کچھ بھی نہیں مانگ رہا ہے، تو کچھ کرنا ہے تو ہمیں جو ہے اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ اور ایک مرتبہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جو ہے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ میں جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے بارگاہ میں تشریف لا رہے ہیں، سب لوگ تھے وہاں پر، آپ نے تیزی سے اٹھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے آپ نے جو ہے آپ کا بازو تھاما، اور تھام کر جو ہے اپنی جگہ جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے کیا کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر بیٹھا دیا۔ جب آپ بیٹھا دیا اور آپ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تھوڑی دور پہ جو ہے جا کر بیٹھ گئے، تو اسے یہ دیکھ کر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم نے دیکھا ہے میرے ابوبکر نے کیا کیا؟ قدر والا ہی قدر والے کو جانتا ہے، یعنی کہ عزت والا ہے عزت والے کو جانتا ہے۔ ادب کے خطبے پڑھے تھے کیا وہ لوگ؟ نہیں پڑھے تھے۔ اے- ایک دوسرے کا ادب کیسا کرتے تھے دیکھیے۔ تو اس سے یعنی کہ ہم نے ایک تو یہ دیکھا کہ قرآن مجید سے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور قرآن مجید میں بتایا گیا تو یہ ہم پر واجب ہے اہل بیت سے محبت کرنا۔ اور اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں یہاں پہ حکم فرما رہے کہ اہل بیت سے محبت کرو، اور یہ صحابہ کی بھی سنت ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا۔ تو ہمیں جو ہے اہل بیت سے محبت کرنا ہے، اہل بیت سے محبت کریں گے تو یہ کیا ہوگا، یہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، یہ ضمانت ہے۔ اہل بیت سے اگر محبت کریں گے یہ تو ہماری جو ہے ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا، اور ہمیں جو ہے اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ اب محبت کرنے کے لیے ذکر جو ہے شرط ہے، بغیر ذکر سے محبت حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے آج ہم ذکر اہل بیت سے جو خصوصی جو حصہ ہے وہ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے، کیونکہ یہ مہینے میں جو ہے آپ کی ولادت ہوئی تھی، تو ہم آج انشاءاللہ اہل بیت کا ذکر میں سے ہم جو ہے بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو ہے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں تم میں جو ہے دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب بھاری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، دو بھاری چیزیں، اب وہ بھاری چیزیں کیا ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے بھاری چیزیں تو اب وہ بھاری چیزیں کیا ہے؟ اگر یہ چھام لو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ بھاری چیزیں کیا ہے؟ ایک تو کتاب یعنی کہ قرآن، اور دوسرا کیا ہے؟ اہل بیت۔ اگر ہم اسے تھام لیں گے تو ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیں جو ہے لاوارث چھوڑ کر نہیں گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے یہ دو چیزیں چھوڑ کے گئے۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ بھاری چیزیں، ایک تو قرآن ہے، ایک اہل بیت۔ اگر ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں جو ہے قرآن کو بھی قرآن بھی لیں، قرآن کے ساتھ ہمیں اہل بیت کو بھی، اہل بیت کی محبت بھی ہمارے دل میں ڈالا ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت ضروری نہیں ہے، معاذ اللہ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، قرآن سے پڑھ لیں گے بلکہ سمجھتے ہیں، مگر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بتایا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اسے تھام لو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بتا دیا کہ ہمیں جو ہے یہ دو چیزیں تھام کر رکھنا ہے، اور یہ دو چیزیں کبھی جدا نہیں ہوں گی۔ اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمائے کہ یہ جو ہے مجھے حج کوثر پہ ملیں گے، تو ہمیں اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ اہل بیت سے محبت کریں گے تو یہ ہمیں جو ہے کامیابی ملے گی، یہ ضمانت ہے ہمارے خاتمہ ایمان پہ ہونے کا، یہ ضمانت ہے۔ تو ہمیں اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالنا ہے، ہماری اولاد کے دل میں ڈالنا ہے، ہمارے گھر والوں کے دل میں ڈالنا ہے، اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالنا ہے۔
تو یہ کیا ہے، ہمیں جو ہے 2 چیزیں، اب دیکھیے دین میں دیکھیے ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک پریکٹیکل ہوتا ہے، عام زندگی میں تو ایک تھیوری ایک پریکٹیکل ہوتے رہتا ہے نا ایگزامس میں، اسی طرح سے دین میں بھی جو ہے ایک تھیوری ایک پریکٹیکل ہے۔ اگر تھیوری دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھیے، اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو اہل بیت کو دیکھیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ جب یہ 2 چیزیں اگر تھام لیں گے تو ہماری زندگی کا مطلب کہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالنا ہے۔ اگر ہم یہ ڈالیں گے تو ہماری کامیابی ہوگی۔ اور بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ، دیکھیے آپ کے بارے آپ دیکھیے افضل، یعنی کہ دنیا میں جتنے بھی عورتیں پیدا ہوئے اور پیدا ہوں گی، آپ سے افضل کوئی نہیں ہے۔ اب یہ فیصلہ ہم کیسا سنا سکتے ہیں؟ یہ فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دو عالم کے سرکار سلام اللہ علیہ، بتائے سردار پیغمبر کے سردار نے فیصلہ سنا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بی بی مریم علیہ السلام اپنے زمانے کی افضل خاتون تھی، یعنی کہ عورت تھی، اور بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے اپنے زمانے کی یہ جو ہے بہترین خاتون ہے، بہترین افضل خاتون ہے۔ اب بی بی مریم علیہ السلام کا زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ بی بی مریم علیہ السلام کا زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زمانہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زمانہ، حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ 3 زمانوں میں جو ہے آپ افضل تھی، آپ کی شان الگ تھی، آپ کی فضیلت الگ تھی، یعنی وہ پوری پلانٹ میں آپ افضل تھی جب وہ زمانے میں۔ اب بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ وہ زمانہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، مبارک زمانہ ہے یہ زمانہ۔ مکے سے مدینے تک، مدینے سے آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک جو ہے یہ زمانہ، زمانے میں جو افضل خاتون، جو بہترین خاتون، جو شاندار خاتون، وہ کون ہے؟ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ کیونکہ ہر پیغمبر شان والے ہیں، ہر پیغمبر جو کلام پڑھتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پڑھتے۔ ہمارے سرکار کون ہے؟ امتی کے بھی سرکار ہے، پیغمبروں کے بھی سرکار ہے، سرکار تو یہ امت الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہم امت محمدیہ ہے، امت محمدیہ افضل ہے، اور اس میں جو افضل خاتون جو ہے بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اب یہ کیسا؟ اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم فاطمہ کو عام نہیں سمجھو، عام نہیں سمجھو، تم فاطمہ کو جو ہے عام نہیں سمجھو، ان سے بہتر پوری کائنات میں کوئی ہے نہ، نہیں نہ رہے گا۔ یہ درجہ آپ کو کیسا ملا؟ یہ کمال آپ کو کیسا ملا؟ حضور نے جواب دیا، اس پر ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فاطمہ کو غیر نہ سمجھو، یہ جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے جسم کا حصہ ہے، یہ فضیلت مجھے اللہ تعالیٰ نے دی، اور جو فضیلت مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ان فضیلتوں کا جسے حصہ ملا وہ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ملا ہے۔ سب محنت کر کے ایک لیول پہ جاتے ہیں نا، ہم بھی کچھ ڈگریز اگر حاصل کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، یہ فلاں پڑھ پڑھ کے جو ہے ہم ایک لیول پہ جاتے ہیں۔ اب وہ مگر علماء بھی جو ہوتے ہیں ایک فلاں دین سیکھ سیکھ کے جو ہے ایک لیول پہ جاتے ہیں، مگر حضور کے جسم کا حصہ ہونا یہ محنت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ سیدنا خاتون جنت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام علیہ، حضور فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آج جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو ہم دیکھیں ہم بھی کیا کرنا ہے، ہم دیکھیں ہم جو ہے آپ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت مبارکہ ہمارے دلوں میں بسانا ہے۔ اگر ہم یہ دل میں بسائیں گے تو ہمارا دل کا کیا حال ہوگا؟ تو ہمیں چاہیے کہ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ اگر ہم یہ ذکر کریں گے یہ تو ہماری زندگی بھی کامیاب ہوگی۔ اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں نے بہت ساروں کو دیکھا مگر یہ لوگ میں پوری زندگی کا تجربہ بتاتے ہیں آپ، ایک قول میں بیان کرتی آپ کہ وہ ہے کہ میں جتنوں کو دیکھا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے افضل ان کے بابا کو نہیں دیکھا۔ شان اگر عظمت کی بات ہو، اگر فضیلت کی بات ہو، اگر کوئی سیدنا فاطمہ کائنات خاتون جنت بھی رضی اللہ تعالی عنہا سے افضل دیکھا، وہ ایک ہی ہستی ہے، وہ ذات مبارکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پوری دنیا میں افضل جو میں نے دیکھا، جسے میں نے پایا، وہ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی کی سیرت مبارکہ ہمارے دل میں بسانا ہے، یہ ہماری دنیاوی سوشل کی جو بھی پرابلمس ہے وہ ہماری گھٹ جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہے ایک ذکر کرنا ہے کثرت سے، اور آپ کی سیرت مبارکہ ہمارے دل میں بسانا ہے۔
اور آپ کے جو ہے نیمز یعنی کہ آپ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ کا آپ کے نام کا جو ہے آپ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ اس کی تسمیہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کا نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ اللہ عز و جل اس کو اور اس کے محبوبین یعنی کہ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اور ان کو جو چاہنے والے ہیں ان کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے ہمیں ساری زندگی جو ہے اہل بیت کی محبت دے دے اور ہمیں جو ہے اس میں غلامی میں جو ہے ہمیں شامل کر لے، اور زہرا یعنی کہ جنت کی کلی، اور کہیں روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جنت کا پھول، اور حضرت مفتی یارفع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ آپ کی اولاد اور آپ کی اولاد اور آپ کی محبوبین کو دوزخ کی آگ سے دور کیا، اس لیے آپ کا نام جو ہے فاطمہ ہوا، اور آپ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے الگ تھی اس لیے آپ کا نام بطول لقب ہوا۔ زہرا یعنی کلی، یا کلی، آپ کلی تھی جنت کی، حتیٰ کہ آپ کی ایسی کیفیت نہیں ہوئی جیسا خواتین پہ ہوتی ہے، دو چار ہوتی ہے نا، وہ نہیں ہوئی، آپ کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی تھی، اور اس کو جو ہے اس کو کون بتاتے ہیں؟ اس کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس خوشبو کو جو ہے سونگا کرتے تھے، اور اس لیے آپ کا لقب زہرا ہوا۔ ایسی پاک اور صاف کبھی عورتوں کی جو کیفیت ہوتی تھی وہ آپ کو کبھی نہیں ہوئی، جسم سے عطر پاک اور صاف جنت کی خوشبو آتی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سونگا کرتے تھے، اور وہ جنت کی کلی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر کا ٹکڑا ہے، اور اور آپ جو ہے اور ایک جگہ یہ بتایا جاتا ہے کہ فاطمہ پاک ہے، بے پناہ پاک ہے، اور انسانی میں جو ہے انسان جو ہے کبھی پاک ہوتا ہے کبھی ناپاک ہوتا ہے، انسان کی کیفیت ہوتی ہے نا، انسان ہر دم جو ہے ناپاک تو نہیں ہوتا نا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ فضائل بیان کرتے ہیں آپ کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری بیٹی پاک ہے، کبھی ناپاک نہیں ہوتی ہے، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب پیدا ہوئے یعنی کہ جب دنیا میں آپ تشریف لائے، ظہر کے بعد پیدا ہوئے آپ، اور آپ عصر میں مصلی پہ ٹھہری ہوئی تھی، یعنی کہ پورے مکے مدینے کے پورے لوگ یعنی کہ پورے خواتین حیرت میں تھے، یہ کیا ہے؟ تو آپ وہ پورے جتنے بھی خواتین تھے وہ کیا کرے حضور کی خدمت میں پہنچ گئے اور فرمایا کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا مان رہا ہے؟ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو ہے آپ کی اولاد جو ہے تولد ہوئی، اور آپ جو ہے مصلی پہ ٹھہری ہوئی ہے، تو پھر آپ اس پر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فرماتے ہیں فاطمہ کو عام عورتوں کو مت سمجھو، فاطمہ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حوروں سے زیادہ عزت عطا فرماتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی حوروں کی طرح ہے فاطمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کے اتنے فضائل بیان کرے، اور امتی یعنی کہ آقا کے شان پہ فضائل بیان کر سکتے ہیں، یہ امتی پہ حق ہے کبھی نبی پاک کا، اور مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شان کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا یہ سوچئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بی بی فاطمہ سے فرمایا تمہارا غضب سے غضب الہی ہوتا ہے اور تمہارے رضا سے رضا الہی ہوتا ہے، اور ایک جگہ نبی پاک نے بھی ایک جگہ روایت ہے کہ نبی پاک نے فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اس سے گوارا نہیں وہ مجھے گوارا نہیں، جو اسے پسند نہیں وہ مجھے پسند نہیں ہے، اور قیامت میں میرے سوا میرے نسل یعنی میرے نسل رہیں گے، اور جتنے بھی رشتے ازواجی جتنے بھی لوگوں کے جتنے بھی رشتے دنیا بھر کے وہ رشتے ختم ہو جائیں گے، مگر میرے نسب یعنی کہ میری نسل القیامت کے دن بھی رہیں گی، لیکن بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے، اور بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی نبی پاک کی پیاری بیٹی، بہت چہیتی بیٹی، اور چلتی پھرتی تصویر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر آپ کا دیدار کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے جیسا ہوتا تھا، کیونکہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ جو ہے یہ صورت چلنا انداز مشابہ سب آپ کی ہی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مشابہ میں ہی تھی، تو سبحان اللہ دیکھیے، اور ایک واقعہ رکھتی ہوں صبر کا جو واقعہ ہے، صبر کا واقعہ ہے، دیکھیے انداز تربیت کیسی تھی آپ کی، جو بابا جان کے گھر سے آپ جو بارگاہ سے جو لے کر آئی آپ کی تربیت دیکھتے ہیں ہم، بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دیکھیے اتنا کام کرتی تھی، سارا دن آپ جو ہے گھر کے کام کاج میں رہتی تھی، آپ کے بیٹے جو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میں صرف 11 مہینے کا فاصلہ تھا، تو آپ پورا گھر کے ہر کام کرتی تھی، ایون آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے والدہ کو بھی دیکھتی تھی، لیکن ہر کام کرتی تھی آپ، تو ایک مرتبہ یوں ہوا کہ آپ کے جو ہاتھوں پہ جو چھالے پڑ گئے تھے،
आपने क्या किया, अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि चलो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और कहते हैं कि एक आपके पास जो है कई कनीज़ें आए हैं, हम एक कनीज़ ले लेते हैं। तो फिर आप दोनों यानी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में तशरीफ़ ले जाते हैं और फरमाते हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मुझे जो है एक मतलब कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है अन्हा को जो है काम करने से, चक्की पीसने से जो है आपके हाथ में जो है छाले पड़ जा रहे हैं, तो एक आपके पास इतने कनीज़ें आए, एक कनीज़ आप दे दिए तो बल्कि आप फरमाते हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते, तो फरमाते। तो यहाँ पे जो है आप मतलब कि आप अगर कनीज़ आ गई तो आपका काम में जो है हाथ बढ़ा देंगे बोलकर आप फरमाते। फिर इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर आयशा बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलाम के लिए जनाबे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने मुझे फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाइए आप। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर फरमाते हैं कि 33 मर्तबा जो है सुभान अल्लाह पढ़े, 33 मर्तबा जो है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े और 34 मर्तबा जो है अल्लाहु अकबर पढ़े। यानी कि तभी तस्बीह खत्म होगी, गुलाम आज़ाद करने का सवाब होगा। यानी कि आप खुश होकर इस तरह वापस आई, पाक महबूब की पाक बेटी, इज़्ज़त वालों की इज़्ज़त वाली बेटी, वो नबी पाक के घर की बेटी है। यानी कि नबी नबी वो नबी पाक के घर की है इज़्ज़त, नबी से सुनते हैं। वो अली के घर की है इज़्ज़त, अली से सुनते हैं। वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल कर दिया ज़माने को। देखिए देखिए आप कैसी हस्ती थी। अल्लाह पाक ने आपके अंदर कितने-कितने कमालाते दिया था और कितने दिन कहीं दिन जो है आपके घर पे जो है चूल्हा नहीं जलता था। यानी कि ये मजबूरी नहीं थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पसंद थी। ये आप लोगों ने इख्तियार किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अल्लाह ताला से फरमाया कि मेरे घरवालों को एक वक़्त का रोटी देना और एक वक़्त का फ़ाक़ा करना। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो अगर हाथ उठाते तो ये पहाड़ भी जो है सोना बन जाते थे। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इख्तियारी की। हमें ये कभी ये लफ्ज़ भी नहीं लेके आना कि मजबूरी थी, ऐसे हालत थे, वैसे थे। माज़अल्लाह हम ये वर्ड भी नहीं आना। एक अल्लाह वाले ये भी बता दिए कि अगर ये वर्ड्स आए तो वो मुसलमान ही नहीं है बल्कि बताया। ये इख्तियारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। ये आपकी पसंद थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद थी। ये जो घर में जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाए कि एक वक़्त का खाना दे, एक वक़्त का जो है रोटी देना और एक वक़्त का फ़ाक़ा देना अल्लाह ताला से आप ये पसंद फरमाया। यानी कि वो खूबसूरती, सादगी वाली ज़िंदगी थी, ज़िंदगी में लगे थे। कई दिन फ़ाक़ा होता था, घर पे खाना नहीं पकता था, पर दरवाज़े पे जो भी माँगने वाला आता था, झोली भर के अता किया जाता था। यानी कि बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला ने अन्हा की जो ज़िंदगी थी, सादगी वाली ज़िंदगी थी। ये देखिए मतलब इससे हमें या क्या पता चल रहा है कि हम देखिए हमारे पास आलीशान हम लग्ज़रियस लाइफ़ देखते, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए सादगी कैसी अंदाज़ तरबियत कैसी थी आपकी देखिए, सब्र कैसा था, ये सब आपने अगर चाहते तो आप अगर हाथ उठाते तो वो पहाड़ भी सोने जैसा बन जाता था। मगर आपने क्या इख्तियार किया? आपने ये इख्तियार किया, ये आपकी पसंद थी, ये आपकी मजबूरी नहीं थी। तो हमें मतलब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे दीन आसान है। चाहे वो कितना भी गरीब से गरीब इंसान रहो, चाहे वो कितना अमीर से अमीर इंसान हो, दीन आसान है। दीन सीखना है हमें, दीन सीखना है। अगर हम ये सीखेंगे तो हम कामयाब होंगे। ये हमारे लिए जो है चलती-फिरती मतलब ये हमारे लिए जो है मिसाल है। बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है हमारे लिए मिसाल है। आप घर के भी काम खुद करती थी और घर के हर काम करने के बावजूद भी देखिए आप कैसा पर्देदार खातून थी और ये आपकी सुन्नत मुबारका है, ये आपकी सुन्नत मुबारका है हाथ से काम करना। हम क्या करते हैं हमारे दिमागों में हम डाल लेते ना कि हमें क्या अजर मिलता अगर घर के काम करें तो अगर हम ये हम इनके काम कर रहे हैं, उनके काम कर रहे हैं, हम ये समझते। मगर देखिए अगर हम ये सुन्नत है ये न बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला की अन्हा की जो ये सुन्नत है बोलकर अगर हमें काम करेंगे ना तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका अजर हमें देंगे। तो हमें जो है बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो सब्र है, जो इस्तिक़ामत है, ये हमारी ज़िंदगी में भी लाना है। ये हम कैसे लाएँगे? हमें ईमान सीखना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है कि हमारे दिल में तस्दीक करना अल्लाह हाजत रवा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये हमारे दिल में तस्दीक करना। बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पूरी सब्र इस्तिक़ामत वाली ज़िंदगी थी आपकी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की मुकम्मल ऐनेदार है आप। यानी कि आप अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जो है सिंपल लिविंग देख सकते थे। सीधा सादी मतलब आपने क्या किया? सीधा सादी ज़िंदगी दी। यानी कि लग्ज़रियस लाइफ़ दे सकते थे मगर सीधा सादी ज़िंदगी दी। और हदीस में भी आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बेटियों वालों को जो है बुरा मत कहो, मैं भी बेटियों वाला हूँ, सुभान अल्लाह। और वो जन्नत की टिकट है।
और एक रिवायत में ये भी आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी को 3 बेटियाँ हो, अगर उसकी खिदमत अच्छी करे और उसे अच्छे घर में जो है शादी करके दे, तो उसे जन्नत मुकर्रर कर देंगे अल्लाह ताला। और एक सहाबा ने फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी 2 बेटियाँ हैं तो इस पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी को 2 बेटियाँ हैं भी तो अल्लाह ताला जो है उसे अच्छी खिदमत करे और उसका अमानत अच्छा अदा करेंगे, तो अल्लाह पाक उसे भी जो है जन्नत मुकर्रर करते हैं। और एक सहाबा ने कहा, अगर किसी को 1 बेटी रहे तो इस पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर इसकी अच्छी से तरबियत करे, इसकी अच्छी खिदमत करेंगे, तो इसे भी जो है अल्लाह पाक जो है इसे भी जो है जन्नत अता करेंगे। तो हमें चाहिए कि बेटी से हमें जो है मोहब्बत करना चाहिए। आजकल हो रहा है ना भाई कि मुँह चुड़ा देते हैं, अगर बेटा हुआ बोले बेटी हुई बोले तो मुँह चुड़ा देते हैं। मगर हमें चाहिए कि बेटी से मोहब्बत करना, ये बेटी से मोहब्बत करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो हमें चाहिए कि बेटी से मोहब्बत करें। और एक जगह और एक वाक़या रखती हूँ। आपका जो अ आपकी जो एक आपने जो दीन के लिए जो आपने क्या काम किया, आपने कैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा रिप्रेज़ेंट किया, वो एक वाक़या रखती हूँ मैं कि एक यहूदियों की औरतें जो है उन्हें जो है एक शरारत सोचती। वो लोग जो सोचते हैं कि मतलब एक गलत नीयत से जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं और फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि वो औरतें जो यहूदियों की औरतें रहते हैं, वो लोग शरारत सोचते और सोचकर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं और फरमाते हैं कि हमें जो है हमारे घर पे जो है शादी है, तो आपकी बेटी बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जो है हमारे यहाँ भेजना, हमारे घर पे जो है बहुत लोग आने वाले हैं, अगर आप उन्हें भेजेंगे तो इस्लाम की दावत आप देंगे। मतलब यहाँ पे जो है आपको पता है कि ये जो है दीन के पैगाम, मतलब दीन का पैगाम बोलकर जो नाम लेकर जो बुला रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है कि ये जो चाल से बुला रहे हैं, ये धोखे से बुला रहे हैं। फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दीन का काम है बोलकर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है मैं भेजूँगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जो है ये पैगाम भेजा। जब ये पैगाम भेजा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि आप सल्ल ये जब पैगाम भेजा, तो बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है ये पैगाम को कबूल कर लिया और कबूल कर जो है कबूल किया, कबूल कर दिया। फिर कबूल करे बाद में जो है आपके आँख में थोड़े आप जो है मन ही मन में जो है अल्लाह की तरफ रुजू होती है और सोचती है, यानी कि आपके आँख से जो है 2 आँसू भी आते हैं और आप ये सुनिए, क्योंकि वो जो शरारत जो जो औरतें जो यहूदी के औरतें थे, वो औरत के दिल में जो है उन लोगों की नीयत गलत थी। वो लोग इसलिए बुला रहे थे माज़अल्लाह आपके जो है मज़ाक उड़ाए, यानी कि आपकी मज़ाक उड़ाए, क्योंकि आपके पास जो है एक ही लिबास था, उस पे भी जो है पेवंद थे। यानी कि देखिए सरकार दो आलम की बेटी है, एक ही लिबास में। हम क्या करते हैं, हमारे पास घर में जो है बैगों में कपड़े, अलमारी में फुल-फुल कपड़े, फिर भी हम जो है खुश नहीं रहते, हमें और कपड़े चाहिए। मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, देखिए आप कैसा मतलब कैसा लिबास आपने इख्तियार किया आप लोगों ने, ये इख्तियार किया। मतलब कल के दिन हम नहीं बोलना कि ये तो पैसे वाले दीन 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 सीख सकते हैं, नहीं। अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो है बताया दीन आसान है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर जो है दीन सीख सकता है। तो आपने क्या किया, वो जो है जो औरतें थे, बदमाश औरतें थे, उन लोगों की सोच अलग थी, उन लोग की नीयत अलग थी। वो लोग ये चाहते थे कि आपको बुलाए और आपका जो है मज़ाक उड़ाए। फिर आप देखिए बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला के पास जब पैगाम पहुँचता है, तो आप जो है फ़ौरन उसे कबूल कर लेती है। फिर आप दिल में दिल सोचती है, अल्लाह ताला की तरफ रुजू रही, मैंने तो हामी तो भली, और आपके आँख से आँसू आते हैं। आप ये सोचते हैं कि या अल्लाह, अपने लिए नहीं, तेरे नबी के दीन के लिए, दीन के वक़ार के लिए, या अल्लाह ये औरतें बुरे ख़यालात के हैं, ये मज़ाक उड़ाएँगे, दीन इस्लाम के लिए नज़र करम फरमा या अल्लाह, मेहरबानी फरमा। बात ख़त्म हुई कि नहीं की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास फ़ौरन तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं कि क्या सोच रही थी? मतलब बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या सोच रही थी? तो फिर इस पर देखिए, आप इस पर ये भी बताती है कि मैंने बादशाही के नज़ारे जो है घर में देखी। यानी कि हुज़ूर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप सोच रही थी, आपकी बात भी ख़त्म नहीं हुई, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपके पास जो है एक चादर लेकर आते हैं, चादर में जो है जन्नत का लिबास होता है। अब वो चादर जब खोलते हैं तो देखते हैं कि जन्नत का लिबास है, तो फिर आपको बताते हैं और फरमाते माने कि आपको देते हैं, ये देकर कहते हैं कि आप क्या सोच रही थी पता नहीं, मगर अल्लाह ताला ने जी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए जो है आपको जो है ये लिबास भेजा है। तो फिर और फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये लिबास पहनकर जो है तुम दावत में
शरीक होना, यानी कि वो जो जो शरारत, यानी कि जो यहूदी की औरतें थे, उन जो दावत दिए थे शादी की दावत, उसमें जाना। फिर उस पर जो है फिर बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है वो लिबास पहन लेती है। जब लिबास पहनती है, जब आप जो है अंदर जाने लगती है, यानी कि जब आप अंदर जाती है, तो सब लोग, जितने भी लोग थे सब सजे हुए थे, मतलब बहुत अच्छा तैयार होके थे शादी में, मतलब वो औरतें पूरे जो भी थे पूरे सजे हुए थे। जब आप अंदर तशरीफ लेके गई, सब जितने भी सजे हुए थे सब कनीज़ें दिखने लगे और आप मलाइका दिखने लगी। यानी कि आप जन्नत का लिबास पहनी हुई है और आप मलाइका दिखने लगी, और सब लोग जो है यानी कि अल्लाह ताला का खौफ आप लोगों के दिलों में आ गया। वो जितने भी लोग थे सबके दिलों में जो है अल्लाह ताला का खौफ पैदा हो गया, और सब लोग जो है बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इर्द-गिर्द फिरने लगे, और जो है आपको ले जाकर जो है एक जगह बैठाए, और सब ने जो है पूछने लगे, "ये कहाँ से मिला तुम्हें लिबास?" यानी कि ऐसा लिबास, जन्नत का लिबास वो लोग कहीं भी नहीं देखे थे, तो ये लिबास कहाँ से मिला बोलकर आपसे फरमाते। तो मतलब वो जो औरतें थे फरमाते। तो फिर आप बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती है कि मुझे ये लिबास मेरे बाबा जान ने दिया, यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। फिर इस पर जो है फिर वो फरमाते हैं कि तुम्हारे बाबा जान को किसने दिया? तो इस पर जो है बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती है, ये लिबास जो है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरे बाबा जान को दिया। फिर इस पर ये फरमाते हैं कि ये हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कैसे मिला? तो फिर आप फरमाती है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से जन्नत से ये लिबास लेकर आकर मेरे बाबा जान को दिया। तो देखिए, फिर अब यहाँ पे वो लोग जो है परेशान हो जाते, भाई जन्नत के लिबास को देखकर आप लोगों के टोटली ऑट हो गए थे, मतलब कि मतलब वो हो गए थे। तो मतलब कि जन्नत के लिबास को देखे, और हम जब देख लिए, जान लिए ये जन्नत का लिबास है, ना ये लिबास कभी किसी मतलब देखे ही नहीं, ना कभी देखे, खाली सिर्फ़ जन्नत का लिबास, अब जन्नत कैसी होंगी? तो देखे, खाली जब देख लिए, जान लिए जन्नत का लिबास है, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मतलब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है कलीमा पढ़ने लगे, यानी कि गवाही देने लगे, और सब जो है ईमान ला लिए। यानी कि मोमिन जो होता मुहासिर होता है, यानी कि ईमान का असर लोगों पे छोड़कर आता है। जो गैर मोमिन होता, मुतासिर होता है, मतलब दुनिया से अट्रैक्ट होता है। अगर हमें जो है हज़रत सईदना फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला की कनीज़ें होनी चाहिए, हम कनीज़ें बनना चाहिए। जब जो ईमान वाली होती है, जब किसी जगह पे जाएँगी, अपने ईमान से दूसरों के ईमान के नूर से मतलब उन लोग क़ल्ब को भर देगी, तो नूरे ईमान आना है। तो दीन सीखना ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी में हमें जो है सब्र, भरोसा, तवक्कुल की ज़िंदगी, ये सब चीज़ें कब आएँगी हमारी ज़िंदगी में? जब आप ईमान सीखेंगे। ईमान आने के लिए हमें इल्म सीखना ज़रूरी है। जब इल्म सीखेंगे, सब्र, शुक्र ये सब करेंगे, जो भी नेमतें अल्लाह ताला के पास से मिल रही है, उस पे हम जो है अल्लाह ताला का शुक्र करेंगे। तो इसके लिए हमें इल्म चाहिए, दीन का इल्म चाहिए। जब इल्म सीखेंगे तो ईमान आएगा, यानी कि इल्म होगा तो हालात होगी, हाल होगी, यानी कि दिल की हाल क्या है? दिल की खुशी का नाम है। और तीसरा दर्जा क्या है? अमल, यानी कि ये प्रोसेस है। पहले इल्म सीखना, फिर हमारे दिल में जो है हालात पैदा होती, जब हाल पैदा होता, तो जब हम अमल करेंगे। तो हमें जो है कलीमा सीखना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है हमें जो है कलीमा सीखना है। अब देखिए आप कैसा रिप्रेज़ेंट करें, यानी कि आप कैसा रिप्रेज़ेंट करें, देखिए हमारी अगर नीयत अच्छी है, तो अल्लाह पाक कहीं से भी हमारी मदद करते। बस नीयत दुरुस्त करना है, मगर नीयत क्या रहना? दीन के तय होना, अल्लाह के रसूल के लिए तय होना, और हम जहाँ भी जाएँ, हम जो ईमान सीखे वो हमें सबके तक पहुँचाया। जब हम पहुँचाएँगे, हमें भी सवाब मिलेगा, हमें भी इसका अजर मिलेगा, हम आगे वालों को भी अजर मिलेगा। एक मर्तबा जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में जो है 2 शहज़ादे बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला के बेटे बैठे हुए थे, और एक पे जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मतलब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं आप, तो एक जगह पे बैठे हुए थे। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला फरमाता है एक को अपने पास बुलाना चाहता है, ए अल्लाह के रसूल आपकी मर्ज़ी बताइए, दोनों में से एक को भेज दे। तो इस पर मतलब इस पर भेज दे, यानी कि भेज दे बोल के अल्लाह ताला का हुक्म है, आप भेज दे। तो देखिए अब दुनिया में किसी को भी ये नहीं आता, मतलब कि परमिशन नहीं लेते अल्लाह पाक, ये क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है यहाँ पे जो है परमिशन लिया जाए, यानी कि ऑप्शन दुनिया में किसी को भी ऑप्शन नहीं आता, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पूछा गया। फिर मगर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नज़र डाली हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, और एक नज़र डाली हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला पर, और कहा बुलाना है तो मेरे बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुला लो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अर्ज़ करते हैं आप। फिर हज़रत इब्राहीम
इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फिर आप हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी बढ़कर आप हुसैन रज़ियल्लाहु मतलब हुसैन हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु से प्यार करते हैं क्या? तो आप फरमाते हैं कि मैं गम बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर मेरी बेटी का गम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मतलब कि कुर्बान देखिए कै बे मैं मेरा गम तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर मैं मेरी बेटी का गम अगर अगर हुसैन चले जाएँगे तो मेरी बेटी को गम होगा। मैं अपनी बेटी का गम बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी यहाँ पे जो है एक नई चीज़ भी मिली हमें कि कुर्बान मतलब आप जो है बेटा भी कुर्बान करते रहे बेटी की मोहब्बत में। तो हमें चाहिए कि घर पे अगर बेटी है तो उसकी कदर करे, खुसूसी अटेंशन करे, अटेंशन दे। बेटी की मोहब्बत में बेटे को कुर्बान कर दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तब मतलब कि ये खुसूसी मतलब ये हमें जो है शुक्र करना है। शुक्र करना है मतलब कि आप बेटी की मोहब्बत और बेटी की बाप की मोहब्बत देखिए। तो हमें चाहिए कि बेटी से मोहब्बत करना है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और आप देखिए आह हया वाली, पर्दे वाली ज़िंदगी भर जो है पर्दे वाली खातून थी, यानी कि आपको आखिरी वक़्त में भी जो है एक डोली दिखाई गई और फरमाया कि ए बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला से फरमाते हैं कि ये आपका जनाज़ा है, जब ये जनाज़ा है आपका, अगर आपको जब आपकी मतलब जब आपका विसाल हो जाएगा तो आपको जो है इस पर लेकर जाएँगा। यानी कि इस पे जो है गैर मर्द की जो है नज़र नहीं पड़ेगी। यानी कि आप देखिए आप जो है मतलब आपका जो विसाल मुबारक जो हुआ 3 रमज़ान मुबारक को हुआ। आप जो है सोचने में लगती थी पहले जो है पहले ज़माने में जो है मतलब जब विसाल होता था तो जो है ये 4 पाए पे जो है लेकर जाते थे। तो मगर जब आपकी एक डोली तैयार की गई और डोली तैयार की गई और आपको कहा गया कि जब आपका विसाल हो जाएगा तो आपको जो है ये जनाज़े पे जो है आपको ले ये जो है जनाज़े पे जो है आपको लेकर जाएँगे। तो बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यानी कि आप जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दा फ़रमाए आपके 6 महीने के बाद जो है आपका विसाल हो गया था। जब तक आप रोई नहीं थी, पर आप जब डोली को देखी तो आपने मुस्कुराया और कहा और जो है आपने क्या किया, आपने जो है आपने जो है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा कि पानी गरम करने के लिए कहा, आपने जो है गुस्ल किया और कफ़न पहना और कहा कि मैं गुस्ल कर लिया, मेरी मौत के बाद जो गुस्ल मेरी मौत जब हो जाएगी, तो गुस्ल मेरा ख़त्म नहीं होगा, तो इसी कफ़न से जो है मुझे दफ़ना देना और आपने जो है वसीयत की हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। फिर आपने क्या किया, अपने बच्चों को बुलाया और हाथ से रोटी खिलाया और कहा नाना जान के पास जाओ और सलाम करके आओ। फिर आप क्या करें, आप जो है आप जब सब मतलब कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला जो है नाना जान के पास जो है जल्दी जाकर जो है सलाम करके जो है वापस आ गए। जब वापस आए तो आप लोग देखते हैं कि सईदना फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कदम को पकड़ कर कहती है, "आप मेरे से तो राज़ी तो है ना?" ये मुक़ाम है आपका देखिए, आप भी रो पड़ी। आप मतलब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला भी जो है रो पड़े और मैं राज़ी हूँ। देखिए बाबा के साथ ये मोहब्बत, उम्मत के साथ ये मोहब्बत, शौहर के साथ ये सुलूक, औलाद के साथ ये सुलूक। देखिए हज़रत हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का आपने आप कैसी हस्ती है देखिए, अल्लाह पाक ने आपको कैसे क देखिए ये कैसा होगा, ये सब चीज़ें कब हमारी ज़िंदगी में आएँगी, जब हम ईमान सीखेंगे। अल्लाह पाक हाजत रवा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। जब हमारे दिल में डालेंगे, जब हम इल्म सीखेंगे, तो हम जो है जो हमारे पास नियमतें यानी कि अमानत के तौर पे जो भी चीज़ें हैं, जो नियमतें हैं, उसका शुक्र अदा करेंगे और जो भी काम हम कर रहे हैं, उस पर सब्र करेंगे। जब सब्र करेंगे, शुक्र करेंगे। ये सब कैसे होगा जब हम इल्म सीखेंगे तो। उसमें जो है हज़रत फ़िज़ा रज़ियल्लाहु ताला की आपकी जो ख़नीज़ थी, वो भी रहती है। फिर सबको आप फ़रमाते हैं कि यहाँ से चले जाओ, अल्लाह से मैं इबादत करना चाहती हूँ। मैं अल्लाह ताला के साथ जो है मेरी इबादत करना मैं अब रब के साथ रहना चाहती हूँ। तो फिर आप सब जो है बाहर आ जाते हैं, आप सजदे में चली जाती है, तो हज़रत फ़िज़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती है कि हम बाहर निकले ही नहीं, एक नूर है, यानी घर से लेकर आसमान तक वो नूर था, मतलब नूर आपने देखा नहीं, वैसा नूर था, आसमान से लेकर घर तक जो है नूर था। जब वापस आई तो देखे तो सजदे की हालत में जो है आपकी फौत हो गई। यानी कि आपकी फौत यानी कि ये जो सजदे की हालत की जो है ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला का हमने वाक़या देखा था ना कि आपका ये सजदा ये देखिए आपसे ही मिला उसे। तो मतलब जब जनाज़ा पढ़कर जब आप लोग निकल रहे थे, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला शेर खुदा फरमाते हैं कि ये
آپ के आँख से बहुत आँसू बहते। सब फरमाते हैं, "क्यों रो रहे हो?" तो इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि ये जो है फ़ातिमा ही नहीं गई, फ़ातिमा की रुख़्सत ही नहीं हुई है। ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए दुआ करने वाले ये बड़े हाथ भी रुख़्सत हो गए। क्योंकि आप हमेशा जो है दुआ करती थी, घरवालों के लिए दुआ नहीं करती थी। आपकी दुआ ये होती थी कि अल्लाह मेरे बाबा जान की उम्मत पे रहम फरमा, मेरे बाबा जान की उम्मत को बख्श दे, फ़ातिमा की हाथ की लाज रख ले और क़यामत के दिन उम्मत मोहम्मदिया को रुसवा ना कर। ये फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थे। यानी कि ये आले रसूल है। आपकी फ़िक्र क्या थी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र थी, उम्मत बख्श दिया जाए। तमाम उम्मत की मतलब अहले बैत का हर और किरदार ईमान की जो शाख़िस है, वो हमें जो अहले बैत में नज़र आएँगे। सब्र, शुक्र, रज़ामंदी, सखावत ये सब जो है हमें अहले बैत में दो श द छु आएँगे दिखेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विरासत होती है, इल्म दीन होती है। आपकी फ़िक्र उम्मत बख्श दिया जाए। हम इसे छोड़कर दूसरे में लग गए। हमारे आने के मकसद को छोड़ दिया। हमारे आने का मकसद क्या है? हमारे आने का मकसद क्या है? हमें अल्लाह की पहचान, हमें इसमें लगना है। मगर हमने क्या किया? ये सब छोड़कर जो है हम दूसरी चीज़ों में लग गए। आप वो आला हस्ती है, क़यामत के दिन आपका मुक़ाम ये होगा, अल्लाह ताला के फ़रिश्ते निदा देंगे। जब क़यामत में हश्र मैदान में ये होगा, वो निदा देंगे मतलब फ़रिश्ते निदा देंगे। क्या निदा देंगे? यहाँ निदा देंगे हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अब जब आएगी तमाम महशर के लोगों को अपनी गर्दनों को झुकाने का जो है निदा देंगे। अपनी महशर के लोग अपनी गर्दन को झुका दे, अपनी निगाहों को झुका दे। मखलूक में कौन लोग होंगे वो? नबीयीन, सॉलिहीन, सिद्दीकीन, शहुदा भी होंगे। उसमें नेक बंदे भी होंगे। अल्लाह पाक हमें भी इसे शामिल कर दे। अल्लाह का फ़रिश्ता निदा देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलती मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चहेती बेटी है, हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला की सवारी गुज़रने वाली है। इंतज़ाम कैसा हो रहा है देखिए, पर्दे मतलब कि आपने पूरी ज़िंदगी जो है पर्दे से जो है वो गई। आप जब आखिरत आखिरत का भी जो था आपका यही था कि मैं जो है किसी गैर लोगों का जो है ये नज़र मुझ पे ना पड़े। अब क़यामत के दिन भी आपको कैसा बुलाया जा रहा है, कैसा इंतज़ाम किया गया देखिए। क़यामत के दिन में किसी भी मखलूक को आपको नहीं देख सकते, ऐसा मुक़ाम आपका इंतज़ाम किया है। तो हमें अहले बैत से मोहब्बत करना है। बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला की सुन्नत है कि जो है हम घर के काम हम जो है हमारे हाथों से करना है। तो हुज़ूर के बताए तरीक़े पे आपने अमल किया, तो ये भी जो है हमने जो है हमारी ज़िंदगी में लाना है। बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला की सीरत मुबारका जो है हमारे ज़िंदगी में बसाना है। हमारे ज़िंदगी में हम बसाएँगे तो हमारे आने के मकसद को हम पूरा करेंगे और ख़ास जो है मतलब कि अब ये आप मिसाल है हमारे लिए। माँ का असर जो होता है पूरे घर वालों मतलब माँ असल जो किरदार होती है घर की, माँ का असर जो होता है बच्चों पे असर होता है। तो हमें चाहिए कि आपकी सीरत मुबारका हमारे दिल में बसाए। अगर हम ये दिल में बसाएँगे, ये तो हम जो है आने के मकसद को पूरा करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हमारे दिल में हमें तस्दीक करना है। जब ये सीखेंगे, जब से करेंगे तो सब्र, तवक्कुल हर चीज़ हमारे अंदर जो है ये पैदा होगी। नहीं, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम दुनिया की टेंशनों में भरे रहेंगे और दुनिया की चीज़ों में हम जो है उसमें लज़्ज़तें ढूँढते फिरेंगे। अगर हमें लज़्ज़त होना है दुनिया में तो हमें दीन की तरफ लौटना है। जब हम दीन की तरफ लौटेंगे तो हमें जो है यहाँ पे भी फ़ायदा होगा, आखिरत में भी फ़ायदा होगा। तो अल्लाह ताला से मैं आखिरी में यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता करे। बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला सदक़े में हमारे तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फ़रमा और हमारे तमाम गुनाहों को मिटा दे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।